ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁੱਕਰ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਜੂਗੀ। ਮੰਮੀ ਇਹਦੀ चलो ले आयरन ताज़ा ताज़ा। बहुत सारी न्यू मॉम्स हैं, मुझे फॉलो करती हैं और बहुत सारी आने वाली न्यू मॉम्स भी देखेंगी शायद। और शायद हेलो हेलो सवेरे सवेरे कोई ऐदा कौन करता है? कौन करता है ऐदा? पिछली लेट नहीं कौन करता अच्छी ऐदा? गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये मेरी लम्हा बचपन से ही इतनी प्यार से उठती है ये बिना रोए। आई लव यू मेरे पुत्तू, आई लव यू। मेरा पारू करना फिर चक दिया तेन पक्का। कैसे देखते जी मम्मा को? कैसे देखते जी मम्मा को? हाँ मुझे लट्टी कर गया जी, मुझे लट्टी कर गया जी। मम्मा इज रेडी, सेक्सी। आई लव यू, आई लव यू। चलिए नानी को लापा। और आज मम्मा ने रियाज करना ही करना ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ करिए अपा। ਦੋ ਕੁੱਕਰ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਗਾਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ हाँ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਖ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਲੇਟ ਪਈ ਆ, ਰੋਟੀ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਰਸੋਈ ਚ, ਲੈਚੀਆਂ ਭਾਲਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਏ ਕੁਛ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਚਾਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਡੋ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਜੂਗੀ। ਮੰਮੀ ਇਹਦੀ ਕੀਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਟੋਪੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਕੋਈ ਉਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਬਚੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਜਿਹਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਆ। ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅੱਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਦੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾ ਤੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਆਏ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਂਡੇ ਧਰਾਂ। ਕਦੇ ਦੇੜ ਲਿਆ ਕਦੇ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਕਦੀ 50 ਵਾਰ ਦੇੜੀਏ 50 ਵਾਰ ਬਣਾਈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਹਾਂ ਛੱਡ ਆਉਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ। ਟੋਪੀ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਗੂੜੇ रंग च निगाह दा भी निगाह दा पंगा है। दोस्तों आज लम्मा ने पहनी है अपनी परनानी की हाथ की निट करी हुई। ਮੇਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਬੈਠਾ घर का अनार मर गई। आई नहीं बोली था। मैं ना की कीरत ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛਿੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੋੜਨ ਚ। मैं सोची हूँ मैं तोड़ूंगी, पहले ही तोड़ पहले ही तोड़ लेते हैं। सही गल। तो फ्रूट तोड़ना कितना मजा आंदा है, पूरे फ्रेश फ्रेश। ना मना कीता जुत्तियां पा के गिल्ले च गए ने। मैनू नहीं सी अज मैं तोड़ूं, मेनू सीगा मैं तोड़ू। पहले ही तोड़ लेंदे ने। ਇੰਨੀ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਤੋੜਨ ਚ। ਅਮਰੂਦ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। देख
ਪਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੁਖਾਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ क्लास लगेगी। नहीं तो नहीं जाना किच्चे च नहीं जाना ये ले ले ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਫੇ ਉਹ ਤੋੜ ਵੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀ ਚੱਲ कल मेरे ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਿਓ ਨਾਲ। ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਤੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜੂੰਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਰਤ ਆ ਤੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋੜਨੀ ਕੱਲ ਪੱਕਾ ਤੋੜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਤੋੜਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਗੀ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਉਹਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਤੇ ਧਰ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਹਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਹ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ओए चलो ले आयरन ताज़ा ताज़ा। बस मैं तुहानू दस नहीं सकती, बाली नज़ारे आ रहे ने इत्थे बहुत ही ज़्यादा। मैं की कह रही हाँ, मैं क्या मम्मा बाली नज़ारे आ रहे ने। ਹੋਰ ਯਾਰ मैं ले लिया चमचा। ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਨਾਨੀ 10 साल हो गए। ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਨੂੰ हाँ जब मैं आई सी उदों नहीं आते सी ये दिन ਹਾਂ हूँ आन लगे ने। ਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹਵਾ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ Okay. प्रोटीन नहीं आयरन। ਆਇਰਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇੱਕ ਗੁੱਛੇ ਕੱਢੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਦ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦਾ ਅਮਰੂਦ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਪੱਕਿਆ ਤੋਤਾ ਉਹ ਪੂ ਅੰਬ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਅੰਬ ਨੂੰ पक्के ਕਾਂ ਕਰੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੱਕ ਗਈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਮਰੂਦ ਲੈਣੀਆਂ ਪੱਕਾ ਅਮਰੂਦ ਲੈਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੱਕਾ थैंक यू। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਡੁੱਕਿਆ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਬਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਾਨੀ कैसे एंटरटेन कर रहे हैं मेरी लम्हा को। ਇਹ ਨਾਨੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। रही हूँ यहाँ एडिटिंग और इधर चल रहा है ब्रेकफास्ट एज वेल। और वो रही लम्हा नानी के पास, इतनी देर से सुलाने की कोशिश कर रही, सो ही नहीं रही। मम्मा उधर बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। एक अच्छे पढ़ने कौली सब कुछ भर दिया है। नानी एंटरटेन कर रहे हैं उसको ताकि मैं खाना खा सकूं। मुंह पे रब्बा ओ ओ बस 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 चम्मच चम्मच बज्जूगा उधर ध्यान नाल। रोने लगी बीच में, मम्मा पकड़ के ले गए, सुला दिया मम्मा ने। ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ मुझे अखा एक खुली है दी और नींद चा पूरी। लिया मैनू दे दो, फड़ा दो, बस सो गई, पा दो। लिया स्ट्रोलर इत्थे लिया समझ नहीं ਹੁਣ जुकाम नहीं है, सिर्फ गला खराब है मेरा। वो करके नहीं दिखाता कोई हाई नोट पे तो जा ही नहीं पा रही। बड़ा लंबा है ना दिखाता नहीं लम्बा सो गई है दोस्तों। माँ भी क्या चीज़ होती है ना, मेरी मम्मा को पता है कि भाई मेरे को क्या सूट करता है बचपन से, क्या चीज़ें ख़राब करती हैं मेरे को। मतलब अभी जब से आई हूँ तो मतलब कि मेरा पेट वगैरह बिल्कुल सही है, क्योंकि घर का खा रही हूँ और इतना जैसे
उनको मेरा स्टमक इज़ लाइक बचपन से वेरी सेंसिटिव, सो मैं कुछ कुछ चीज़ें ही खा सकती हूँ, लाइक काले चने, वाइट चने, ये सब कुछ भी मेरे लिए डाइजेस्ट करना इज़ डिफ़िकल्ट। सो कभी कभी खाऊँ तो ठीक है, हर रोज़ वगैरह ये सब कुछ लाइट फूड, फाइबर, ये वो ही मुझे सूट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग डाइट खाऊँ तो बिल्कुल सही रहती हूँ। अगर मतलब कैसे चल रहा है काम तो मेरा स्टमक इतना अपसेट हो जाता है, कोई हद नहीं। इतना देख के खाना पड़ता है कि जैसे पंजीरी खानी है, पंजीरी में भी क्या चीज़ मेरी पंजीरी में जाएगा और मुझे सूट करेगा सब कुछ। और ये चीज़ ऐसी है कि बचपन में तो मैं बहुत ही बीमार रहती थी, मैं स्टमक वॉज क्योंकि कुछ भी हैवी नहीं खा सकती, कुछ भी हैवी नहीं। हाँ, एंड अभी बढ़ते बढ़ते स्ट्रॉन्ग हुआ है, बट स्टिल मुझे ध्यान रखना पड़ता है अपना। अगर ना रखूँ ध्यान तो गड़बड़ हो जाती है, लाइक बहुत इजीली पेट अपसेट हो जाता है, डायरिया लग जाएगा, ऐसे हो जाता है। एंड देन इतना वीक फील होता है, कोई हद नहीं। लम्मा के होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। जितना मैं परफेक्ट रही हूँ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, उतना ही मेरा कह लो डाउन 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 होता गया आफ्टर प्रेगनेंसी। मतलब कुछ भी खाती थी वॉशरूम जाती थी, कुछ भी खाती थी वॉशरूम जाती थी, तो फिर इतना लाइट खाना पड़ता था और बहुत मतलब कि ध्यान रखना पड़ता था। और मम्मा पूरा मेरे डाइट को ऐसे वो पता था कि हाँ इसको ये नहीं ज़्यादा तेनू ज़्यादा मैं दलिया खिचड़ी यही चीज़ां बस देती वही हूँ, चीज़। वेजिस पा के। हाँ, वही चीज़। वो तेरे सब तो बहुत best लोग हुई मुझे है। कहते थे क्या हो गया, नहीं इतनी जल्दी लूज़ कैसे कर लिया। लूज़ क्या, बीमार इतनी हो गई थी, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाती थी, तो उसके कारण शायद मतलब कि लूज़ भी हुआ था ना वेट। फिर 2 महीने बाद फिर भी गेन होना शुरू हो गया जब मैं थोड़ा बेटर फील हुई। 10 डेज का तेरा पेट काफ़ी ख़राब रहा। बहुत 10 डेज नहीं, मतलब मैं मान नहीं सकते, डिलीवरी के बाद मेरे को पेन मेडिसिन टैलन और एडविल जो दी थी, मैंने कभी ज़िंदगी में खाई नहीं है, बहुत कम खाई है मैंने मेडिसिन। उसकी वजह से मेरे को इतना ज़्यादा डायरिया हो गया, इतना ज़्यादा, मतलब फिर मैंने तीसरे दिन ही अपनी मेडिसिन कम कर दी थी बिल्कुल ही। जो मेरे को 6-6 घंटे बाद लेनी होती थी 4-4, 5-5 टैलेनॉल की मेडिसिन, वो मैंने 12 घंटे बाद जैसे लेनी, क्योंकि मेरे को मैंने नोटिस किया कि मेरे को इतना ज़्यादा मतलब कि डायरिया हो रहा है। 6 दिन बाद तो ख़त्म था, मतलब कि बिल्कुल ही मेडिसिन एक भी नहीं लेनी मैंने ली थी, बट पेन इतनी, मेडिसिन नहीं ले रही, पेन किलर नहीं ले रही, और कुछ भी अगर हैवी खाती थी, पंजीरी जैसे कि घी डाल के अगर दे देना मेरे को ज़्यादा घी, बस लूज मोशंस बहुत। इट वॉज़ अ टफ टाइम, इट वॉज़ वेरी टफ टाइम। और एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते थे, तो एक माँ ही होती है जो समझ सकती है बिना कुछ कहे कि हाँ मेरी बेटी को क्या चाहिए क्या नहीं। और नहीं तो हर कोई बंदा कहता घी दो इसको, ये दो, ये दे सकती ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ देने का कोई फ़ायदा नहीं। पेट मेरा इतना मतलब कि सेंसिटिव है, अभी तक है, मुझे हमेशा अपना ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ये एक्ने उकने तो चलो है ही वन ऑफ द पार्ट, बट इंटरनल मोर क्या है ना। वैसे सब कुछ ठीक है, उतना कोई तेरे प्रॉब्लम नहीं, वैसे सब कुछ ठीक है, बट बचपन से ही पेट मेरा सेंसिटिव है। आई हैव टू कुछ ज़्यादा ऑयली खाना बाहर का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ कि नहीं मैं ज़्यादा नहीं, अगर मैं खाऊंगी बाहर का तो थोड़ा खाऊंगी ताकि मेरे को वो अफेक्ट ना करे, और मैं घर का फिर प्रॉपर मील घर पे ही आके लेती होती हूँ। तो बस यही है, आपको बता रही थी, वही मैं बता रही थी कि माँ होती है जो बचपन से जानती है अपने बच्चे को। अब मैं जैसे लम्मा को देखती हूँ, लम्मा को क्या सूट करेगा क्या नहीं, है अपने ना? दिमाग में हमेशा ही रखूँगी मैं, नहीं मेरे बच्चे ਨੂੰ की ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल केयरिंग मामा खास करके, केयरिंग मामा ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ केयर ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਫੇਰ ਵੀ मतलब कि ਬੋਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ओवर हो जाता है कई बार, तो ओवर ही हो जाता है, जिदा ओवर दूसरे डाइपर लाने ही नहीं बिल्कुल। लोग अजकल मावा चाहे जिन्नी मर्जी प्रैक्टिकल होन पर डाइपर दूजे चली जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी इदां दी है कि किया जाए, बट एट द एंड आपको पता क्या, देखो ये एडवर्टाइजमेंट सारा कुछ है, बट एट द एंड यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। फॉर एग्जांपल अब कोक मम्मा कैनेडा च एड्डा वड्डा आंदा वेरी हाई शुगर। अच्छा हाँ, मतलब प्रॉपर लेबल फ्रंट ते आन लग गया, पहला पिछे
ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹਾਰਮਫੁਲ At the end, for example- ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਾਰਮਫੁਲ, ਸਮੋਕ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਟੇ ਵੀ। हाँ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ अब ਚਾਹੀਦੀ। आप सोचो अच्छी चीज़ों को कभी एडवर्टाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल टमाटर खाओ, खीरा खाओ, ये खाओ, वो एडवर्टाइज होएगा नहीं, कभी नहीं होएगा। पैकेट वाली चीज़ें हमेशा एडवर्टाइज होंगी। सो डाइपर भी वो पैकेट में आते ਵੱਡੇ हैं। ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਵੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। करना पैंदा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੈਜੀਸ ਖਾਓ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਣਾ, ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚੋ ਕਮਾ ਬਸ। ਕਮੂ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਓ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਆਲੂ ਮੇਥੇ ਇਹ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਈਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੰਮਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇੜ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਈਪਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੇੜ ਤੇ ਸੁੱਟੀ, ਪੇੜ ਤੇ ਡਾਈਪਰ ਹੀ ਡਾਈਪਰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ, ਗੰਦੇ ਡਾਈਪਰ। ਡਾਈਪਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਐਸੇ ਪਤਾ ਕੂੜਾ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਹੁਣ ਕਿ ਡਾਈਪਰ ਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। सर्च कर लेना आप भी, ਕੀ ਬਣੂਗਾ। मेरे को, मैं ये नहीं कहती कि आई एम परफेक्ट, बट आई एम लर्निंग, और यही दुनिया का दस्तूर है। जब आप सीखो तो वो है ना, तो मैं मतलब कि डिस्पोजेबल कटलरी ये वो कितना यूज़ करना, अब दिमाग में आता नहीं यार ये सब चीज़ें नहीं ठीक, एनवायरनमेंट के लिए नहीं ठीक। पोलिएस्टर कपड़े ऑल मेड अप ऑफ प्लास्टिक, नहीं पता था तब, ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी, ना ही उस तरफ सोचते थे। बट अब दिमाग में इतना कॉन्शियस हो चुकी हूँ कि कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी लिमिटेड चाहे लूँ, मतलब क्वालिटी होवे, क्वांटिटी ना करो, और रिपीट कर लो। अच्छी चीज़ होएगी उसको रिपीट भी कर सकते हो, और बुरी भी नहीं लगती। रिपीट करना कोई बुरी बात नहीं है। बट थोड़ा लम्मा के कारण तो मैं और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई कि उसको क्या पहनाना, जब भी देखना है ये पोलिएस्टर, ये कॉटन ठीक है। बहुत ध्यान नाल, मतलब जो इसके स्टार्टिंग के कपड़े होते थे मैं तो बहुत ही देखती थी कि कितने % कॉटन है, 100% होएगी तो ठीक है। तो पहले अपने पंजाब में या कुछ भी ऐसे लोग क्या करते थे, ये दो शीट्स वगैरह भी पॉलीथीन ऐसे मतलब ट्रिपल से भी ज़्यादा फोल्ड कर देनी, वैसे कॉटन की बेड शीट कोई फोल्ड करके रख देना। हाँ, सुसु किया 3-4 बार दिन में, सुसु किया उस पर हो गया, वो फोल्ड में जाते नहीं, फोल्ड चेंज कर दिया। अब बहुत लोग वॉश कर दो। मेरे को बहुत लोगों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आप इसीलिए कर सकते हो, आपके पास हेल्प है एंड आपको जॉब पे नहीं जाना पड़ा। बट मेरे को जिस लेडी ने एडवाइस किया था, शी वॉज ऑल बाय हर सेल्फ, एंड हस्बैंड था, हस्बैंड सपोर्ट करता था, और बट ऑल बाय हर सेल्फ बोथ, मतलब कि कपल ते, एंड जॉब भी 1 साल बाद ज्वाइन करी। बट ड्यूरिंग दैट मैट लीव शी वॉज एबल टू मैनेज दैट, है ना। सो उसने मेरे को ऐसे बोला कि इफ़ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, है ना। थोड़ी ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी पै सकती है, ज़्यादा एक्सर्शन लगती है, स्टार्टिंग में लगता होता है, उसके बाद तो समझ में आने लग जाता है, साइकिल समझ में आने लग जाता है। क्या मैंने जैसे दिन 10 डाइपर ने 10 नो डिप कर दो। कनाडा में तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि जो ड्राई है वो ड्रायर अच्छे से वो ड्राई नहीं कर पाता। वहाँ पे तो पूरी ड्राई कर देता है, बस थोड़ी देर में एयर ड्राई करती होती हूँ, वो भी लगा कि कॉट के ऊपर कर दिया। पर की जिवें ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਰਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਡਰਾਇਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਫਟਾਫਟ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਜੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਡਰਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਕਰਨ।
ਨਾੜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ मैं तो इसीलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, जो मैं सीख रही हूँ आपको बता सकती हूँ। और बहुत सारी न्यू मॉम्स हैं मुझे फॉलो करती हैं, और बहुत सारी आने वाली न्यू मॉम्स भी देखेंगी शायद, और शायद यहाँ से थोड़ा आपको मतलब कि कुछ टिप्स मिलेंगे मेरी वीडियो के थ्रू। सो यही मेरा कह लो काम है आपको बताना, और बाकी आपकी मर्जी। बट हाँ, वो मेरी जो मैनेजर थी उसने मेरे को मतलब कि बताया और मोटिवेट किया अबाउट दीज डाइपर्स, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छे लगे लम्हा को। रैश इतने मतलब मैं कह रही हूँ गिनती का 1-2 बार रैश हुआ होगा, वो भी जब मैंने डिस्पोजेबल डाइपर उसका बाहर कभी गई तो लगा दिया, तो उससे हुए हैं उसको रैश। बट कॉटन वाले से मतलब कि जो क्लॉथ डाइपर है उससे उसको कभी कोई रैश नहीं हुआ। सो आई वुड हाईली रेकमेंड दैट। आप भी कहोगे क्या ये डाइपरों के बारे में ही बात करती रहती है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। मतलब एवरी 2 hours आई एम चेंजिंग अ डाइपर, सो आई एम गोना टॉक अबाउट डाइपर्स। डाइपर, बर्प, बच्चे का क्या ही है, फीड हो गया, फीड के बारे में भी इट्स अ बिग 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 टॉपिक। आई वॉज वेरी सर्टन टू गिव माई फीड, तो कभी बात करेंगे। अभी काफ़ी लंबी बात कर दी आपसे, 12 मिनट हो गए, oh my God। सो बैठ के बात करूँगी कभी आपसे। और भी आप मुझे बता सकते हो कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी न्यू मॉम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं। सो ताकि आपको थोड़ी नॉलेज मिले, सो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट, ठीक है।